Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching Fact Spin Talk. Welcome to online classes at Scottish Public School. This video lecture is going to be for the class 8 students, and today we are going to start a new chapter, that is History, chapter number 2. The colonial rule in India. So, I hope you all are well and safe with your families. Today, we are going to start this chapter. The chapter's name is Colonial Rule in India. It's class 8 History chapter 2. It's colonial rule in India. So let's get started with this chapter. I hope you all have opened your book and we are on the same page, that is page number 7. So in this chapter we will discuss what was the colonial rule and why and how it was started in India. We are going to discuss those things today. So let's get started. Mercantilism and coming of the Europeans, how the trade and import and export of the goods started, and how the Europeans started coming to this beautiful country, India. Actually, initially nobody was aware of the fact that there is a country in the southern Asia named India. They didn't had discovered the sea route to India. What happened after that? In 1497, one Portuguese sailor, his name was Vasco da Gama. What was the name? Vasco da Gama was his name. He was from Portugal. He was a Portuguese sailor. So he came to India in 1498. He came to India, he reached there, and he was the first man to find the sea route, or the credit to discover India goes to this man. Mercantilism as an economic policy became popular in Europe in the 16th century. It became the dominant economic thought, which advocated that the prosperity of a country depends on the profitable trade. This was a policy, mercantilism was a policy. It developed in Europe in the 16th century. What is advocated? It says that no country can grow, no country can be a prosperous country, no country can get the prosperity without the trade. It means without profitable trade. It means if some country sells something to the other country, purchases something from the other country and sells it to the other country, those kind of transactions of the goods where some profit should be there. This is the only way for a country to become prosperous. So what happened? The first European trader to discover a sea route to India were the Portuguese. The Portuguese explorer Vasco da Gama was the first European to reach India by sea route in 1498. The Portuguese merchants were able to establish political power along the west coast of India with trading settlements. What happened after the discovery of the sea route
from Europe to India, it became popular in Europe that we should also move to that country. India is a very prosperous country and it is known to be a golden rod. It has a lot of riches, so we should try to get some sort of trade going on. Trade going. That's why we can make some money. So everybody, like same French people also thought the same thing. So Portuguese or these Portugali people, they also started settling the trade centers in India. The commodities which were traded that time were cotton, indigo, silk, and spices. Different types of spices like cloves, cardamom, cumin, coriander, whatever it is, ginger. This sort of spices were traded to those countries. So settlements were initially started to develop in Goa, Daman, Diu, Sete, Bassein, and the Santom. So the Dutch arrived in India in 1595. It means almost after 98 years of the discovery of the sea route for India. The Dutch, the people of the Netherlands or Denmark, they are known as Dutch people. So they reached India first in 1555 and established trading factories in Machilipatnam, Pulicat and Surat. These are the locations where they developed or established their trading centers. क्या होता है इस टोटल इस दौर में ये घटनाएं होती है कि सबसे पहले 1497 में एक पुर्तगाली सेलर जिनका नाम वास्को डी गामा था, ये वहां से अपनी जहाज लेकर समुद्र के रास्ते भारत का रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। इससे पहले कई एक्सप्लोरर्स ने अटेम्प्ट किया था, बट बहुत सारे लोग फेल हो गए थे, जिसमें से एक एक्सप्लोरर बहुत ही आगे तक आ गया था और जहां पर वो आया अरेबियन ओशियन में केप ऑफ गुड होप, उस जगह तक आने के बाद उसने हार मान लिया और वापस चला गया था। लेकिन पुर्तगाली सेलर ये वास्को डी गामा ने वहां से भी आगे बढ़ते हुए 1498 में फाइनली भारत पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद जब सी रूट खोल दिया गया, बहुत सारे यूरोप में इस बात की चर्चा थी कि भारत एक बहुत ही समृद्ध राष्ट्र है जहां पर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका व्यापार लाकर हम यूरोप में कर सकते हैं और इनका व्यापार करते हुए हमें बहुत सारी प्रॉफिट कमाने को मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ कमाएंगे और मालामाल हो जाएंगे। ऐसी सोच के कारण वहां से जो लोग व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने, पुर्तगाल के व्यापारियों ने भारत में आया। भारत आकर दमन, दीव, गोवा और इन सब जगहों पर उन्होंने अपना सेंटर बनाया, केंद्र बनाया, जहां से वो माल खरीदेंगे और जहाजों के द्वारा उसको यूरोप भेजेंगे। उन दरमियान यूरोप पहुंचने में कुल 6 महीने साल भर का वक्त लगता था। जहाजों पर लाद कर सामान ले जाया जाता था, बहुत ही स्लो चलती थी जहाजें, तो उस हिसाब से ये सारा कारोबार होने लगा। बाद में चल के जो डच लोग आए, डच मतलब नीदरलैंड के जो व्यापारी थे, 1595 में लगभग वास्को डी गामा के रास्ता खोजने के 98 वर्षों बाद ये लोग भी पहुंचे। इसके बाद फिर इंग्लैंड में क्या हुआ कि इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ I के नेतृत्व में वहां पर एक फैसला लिया गया जहां पे अंग्रेज व्यापारियों को ये परमिशन दी गई कि आप लोग भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। उन लोगों ने वो मसौदा तैयार किया, प्रपोजल एक्सेप्टेड एंड द परमिशन वाज ग्रांटेड टू देम। देन दे मूव टू इंडिया। दे केम फर्स्ट, जो पहला आदमी यहाँ आया भारत में, उस जमाने में जहांगीर थे, हुआ करते थे, मुगल शासक, मुगलों का दौर था, मुगल शासक थे, तो जहांगीर के दरबार में वो आदमी आया, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आता है, उनको प्रपोजल देता है कि हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, आप हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए। परंतु जहांगीर उस बात को ठुकरा देता, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो चला जाता है। फिर उसके यानी वो आया था लगभग 1608 में। 1600 में कानून बना कि आप व्यापार कर सकते हैं इंग्लैंड से इंडिया जाके। 1608 में ये कैप्टन आते हैं, कैप्टन थॉमस, और इनसे काम नहीं, सॉरी कैप्टन हॉकिंस आते हैं और इनसे काम नहीं होता है। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने एक दूसरे 1613 का जब दौर आता है, 1613 में एक थॉमस रॉय करके दूसरे आदमी आता है, सर थॉमस रॉय, ये बात करते हैं और बात करके ये औरंगजेब, जिसको माना जाता है वन ऑफ द, ये बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक शासक था, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही निर्दयी और निश्चल हत्यारा किस्म का ये शासक था औरंगजेब।
इसकी इसके पास वो अप्रोच करते हैं और इसने परमिशन दे दी। ये परमिशन दे देता है कैप्टन थॉमस को, सर थॉमस रॉय को मिल जाता है परमिशन, और इसने सबसे पहला अपना जो फैक्ट्री सेटअप किया ये सूरत में किया। Gradually, the English East India Company established its trading center, Bombay, Calcutta, Madras. English settlements and factories were later established at the Machilipatnam, Patna, Dhaka, Qasim Bazar, Fort George, and Madras, Bombay, Saltanati, Calcutta, and Govindpur. These are the locations where they started establishing their centers. तो इस बात से सब सारा कुछ लेकर के ब्रिटिश को स्पेशल कुछ एडवांटेज भी दिया गया। एक्चुअली होता क्या है कि ये तो मैं आगे की ओर चला गया, उससे पहले वाली बात का जिक्र करना मैं भूल गया था। एंग्लो फ्रेंच वॉर एक राइवलरी चालू हो जाती, दोनों के बीच में एक मतलब फ्रेंच जो थे, फ्रेंच पहले आए और फ्रेंच ने यहाँ पे व्यापार चालू कर दिया। फ्रेंचों के व्यापार चालू करने के बाद भारत में जो है अंग्रेज आए, अंग्रेज आते आते 1613 के बाद इनको परमिशन मिला, लगभग 1615 1400 हाँ जी 1615-16 के आसपास इन लोगों ने पहला एस्टेब्लिश किया। और उससे पहले फ्रेंच यहाँ कर रहे थे, डच कर रहे थे, पुर्तगीज कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, लेकिन आपस में राइवलरी छिड़ गई। और फ्रेंच जो थे, फ्रांस के जो लोग थे, व्यापारी थे, इन लोगों का वर्चस्व बहुत ही दबदबा बना रखा था। इन लोगों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनाई थी इन लोगों ने यहाँ व्यापार करने के लिए। और इन लोगों ने क्या किया कि व्यापार को काफी हद तक बहुत बढ़ाया, बहुत ही फला फूला उनका व्यापार। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत, तो इनके व्यापार को धक्का पहुंचता है और दोनों एक दूसरे को डिमोरलाइज करने के चक्कर में, दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में भारत के बाजार में भी और यूरोपियन मार्केट्स में भी कंपटीशन चालू कर देते हैं। इस तरह से दोनों कंपनी एक दूसरे को घाटा पहुंचाने की फेर में लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे का नुकसान चाहते हैं। इस तरह के इस वॉर को कहा गया कार्नेटिक वॉर। पूछ सकते हैं, यह सवाल हो सकता है, व्हाट इज द कार्नेटिक वॉर? सो वी कैन से दैट द Carnatic wars were the fight between the French and the British companies for the trading, and they were fighting to prove their supremacy. ये एक कारण था। तो जैसा मैंने बताया कि औरंगजेब ने सर थॉमस रॉय को जो परमिशन दे दिया यहाँ पे व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने कई जगह पर, भारत के कई सारे जगहों में, शहरों पर, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज का से हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा भारत को जो हमारा ये हिस्सा होता है, नीचे वाला एरिया, तो इन्होंने क्या किया कि ये पूरा नीचे वाले एरिया में ही व्यापार करने लग पड़े। तो इन सब कोस्टल एरियाज में इन लोगों ने अपने सेटअप्स लगाए, मद्रास, चेन्नई, कोची, बॉम्बे, ढाका, इन सब जगहों पे इन लोगों ने अपना सेंटर्स बनाया। अंग्रेजों को मुगलों से दो रियायतें मिली। रियायत मतलब उनको थोड़ा छूट मिला, लाभ मिला, बेनिफिट दिया गया, एडिशनल बेनिफिट। दो फरमान जारी किया गया। पहला तो औरंगजेब ने दे दिया इसको 1691 में, उसने दिया कि आप जो है ना पूरे बंगाल में अपना काम करिए, आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी होता वो कि जब विदेश से हम कोई कच्चा माल ले आते हैं, कोई व्यापार लाते, कोई माल लाके यहाँ बेचेंगे, तो बाहर से लाने वाले सामान पर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। कस्टम ड्यूटी को बोलते हैं आप अंतरराष्ट्रीय कर होता है, टैक्स होता है एक तरह का, जो विदेशी सामान को जब हम खरीदेंगे तो हमें भी पे करना पड़ता है। सपोज दैट आज आप अमेज़न से जाके नाइकी का या रीबॉक का शूज खरीदते हैं, जो 1000 रुपए का शू होगा उसमें लगभग 60-80% तक का, 120% तक का कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाता है। 1000 का जूता 2200 में लेना पड़ेगा। तो इस तरह की बात होती है। इस विदेश से लाए जाने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि आपने वहां से लाया तो आप भारत में लाके इस्तेमाल करेंगे, भारत में आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट, वो टैक्स देना पड़ता है। तो औरंगजेब ने क्या किया कि बंगाल में पूरा व्यापार करने के लिए इनको कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया। ये पहला फरमान था 1691 में। दूसरा फरमान इसको दिया जाता है फर्रुखशियार, जब बादशाह हुआ करता था फर्रुखशियार, इसने 1717 में दिया कि आप गुजरात में और डेक्कन कहते हैं पूरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस वाले एरिया में, डेक्कन पठार वाले इलाके में जो भी राज्य पड़ते हैं, इनमें आप व्यापार करिए और फ्री ऑफ टैक्स रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरीज इन इंडिया। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर व्यापार करने के नाम पर अपनी कंपनी को बहुत मजबूत करते गए। कंपनी और फैक्ट्रीज के सेटअप्स को सुरक्षा देने के नाम पर इन लोगों ने अपनी आर्मी बना ली। धीरे धीरे बहुत सारे आर्मी के जवानों को अपनी पुलिस में, अपनी फौज में भर्ती करते चले गए। और भर्ती करते करते इन्होंने क्या किया कि
अपनी सेना खड़ी कर ली और बहुत ही मजबूत सेना इनके बन के तैयार हो जाने के बाद ब्रिटिश डोमिनेशन ओवर द ट्रेड ग्रेजुअली गेव द वे टू द टेरिटरीज। तो ये जो कार्नेटिक वॉर्स था जिसमें ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेज लोग इसमें जीत विजेता साबित हुए और फ्रेंच को यहाँ से हटा दिया। फ्रेंच ऑलमोस्ट फ्रेंच खत्म हो गए, यहाँ पे उनका व्यापार खत्म हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ द सच कॉन्क्वेस्ट बिटवीन द बिगेन विद बंगाल। सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल पर उसकी नजर खासी थी और बंगाल के जो शासक हुआ करते थे उस दरमियान इनको लगा कि इनको हराना आसान होगा। सबसे पहली चढ़ाई, पहली लड़ाई अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से लड़ा। At that time, the kingdom of the Bengal included the provinces of Bengal, Bihar, included present-day Bihar and Jharkhand and Odisha। तो ये पूरा उस बंगाल में वो जो मुगलिया सल्तनत का जो बंगाल हुआ करता था उसमें बंगाल भी था, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, बंगाल बांग्लादेश तक, साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे स्टेट आज के उसमें ही शामिल थे। बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। बिहार वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ बंगाल। The farmers granted the English East India Company द फरमान ग्रांटेड, फरमान हुआ करता था। तो मुगलिया सल्तनत के दौरान जब कोई ऑर्डर सरकारी तौर पर पास किया जाता था बादशाह के सहमति से, उसको फरमान कहते थे। उर्दू में फरमान माने ऑर्डर होता है। तो ये फरमान ग्रांटेड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द मुगल्स लेड टू द resentment among the local Bengal Nawabs as the province was losing the amounts of the revenue. The British were also misusing the right of the selling dastak, a free pass, which exempted the European traders, especially British traders of the company, from paying custom duties. Therefore, the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dawla, attacked the English factory at Qasim Bazaar and captured Fort William. The British retaliated and captured Calcutta under the leadership of Robert Clive. He also accused the Nawab of Bengal for conspiring with the French against द ब्रिटिश। अंग्रेजों को जो हुकूमत से, औरंगजेब की हुकूमत से ये फरमान मिला था कि आप व्यापार करिए बिना कस्टम ड्यूटी के। तो ये मुगलिया सल्तनत कहां से रूल करती थी? दिल्ली में। और दिल्ली में करने के साथ साथ क्या करती थी कि अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग इलाकों में अपने अपने एक एक प्यादे को बैठा देती थी, तुम इस एरिया को देखो, पूरा इसका टैक्स लो, हमको भेजो। ये हो गया बात। तो इसमें जब वो फरमान दे दिया, अंग्रेजों ने जब व्यापार शुरू कर दिया, तो बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे, बहुत सारे नवाब थे उसमें, तो इन लोगों को वो बात बुरी लगती थी कि आपने आके यहाँ व्यापार कर रहा, हमको टैक्स भी नहीं दे रहा, हमारा इतना पैसा लॉस हो रहा है, ये पैसे हमको हमारी सरकार यानी औरंगजेब को तो भेजना भी पड़ेगा। औरंगजेब ने उसको छूट भी दी थी, तब छूट दिया था, लेकिन इनको उसमें से कोई छूट नहीं मिली थी। मान लो कि पहले ये बंगाल के नवाब अगर 10,000 रुपए महीने का टैक्स देते थे, तो कितना भी व्यापार होगा, जो भी सारा कस्टम ड्यूटी वगैरह मिला के हमको उसमें से देना है हमको। लेकिन अब इसको कस्टम ड्यूटी में छूट अलग से प्लस 10,000 का 10,000 टैक्स से ले ही रहा है। तो इस बात से ये लोग नाराज हो गए कि हमारा तो मुनाफा घट गया, लेकिन हमारा जो हमारी देनदारी है, जो हमको डेब्ट है, वो नहीं घटा। तो इन लोगों ने क्या किया कि नाराजगी जताई और बहुत सारे नवाबों में ये बात की एक इस बात को गुस्सा पनपा। तो इसमें से एक सिराजुद्दौला नवाब बंगाल हुआ करते थे उस टाइम। ये इन्होंने बात इनको जमी नहीं और ये जाके जो कासिम बाजार है कलकत्ता के पास ही जो बनाया गया था, आप कोलकाता अगर आपने से कोई गया हो तो आपने देखा होगा फोर्ट विलियम बोल के एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र, अभी तो एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। पहले अंग्रेजों का ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था फोर्ट विलियम, ये कलकत्ता में है। तो यहाँ पे इन्होंने कासिम बाजार नाम हुआ करता था उस जमाने में, अटैक कर दिया। किसने किया? सिराजुद्दौला ने वहां हमला कर दिया। इस बात से अंग्रेजों को बहुत ही गुस्सा आया और उन लोगों ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करने का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी को आपने एक तमाचा मारा तो वो भी तो आपको प्रतिक्रिया देगा, या तो ज्यादा चिल्लाएगा, रोएगा, गाली देगा, या अगर आपसे ताकतवर होगा तो आपको आपकी अच्छे से कुटाई कर देगा। तो ये बात होती। तो उसी तरह का रिटेलिएट किया और इन्होंने क्या किया कि एक इसके आर्मी के कैप्टन हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इनके नेतृत्व में हमला कर दिया सिराजुद्दौला के ऊपर और सिराजुद्दौला को हरा दिया। बैटल ऑफ पलासी, ये लड़ाई लड़ी गई कहां? पलासी में। इन द ईयर 1757 में बैटल ऑफ पलासी लड़ी गई। The armies of the company and the Nawab of Bengal clashed in the battle of Palasi. In this battle, Sirajuddaulah was defeated and killed. इसमें युद्ध में
अंग्रेजों की तरफ से जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, उनकी सेना आ गई, 25-30 हजार जितने भी लोगों की सेना रही होगी, और इधर से सिराजुद्दौला अपना पूरा फोर्स लेके, दोनों में टक्कर हो गई। कहां पे टक्कर हुई? ये पलासी के मैदान में, पलासी में लड़ाई लड़ी गई 1757 में। इसमें अंग्रेज बहुत ही भारी पड़े, उनके हथियार मॉडर्न थे, उनके पास बंदूकें थी, ये लोग भाला, टोपी, लाठी, डंडा लेके लड़ने वाले थे, घोड़े पर चढ़ के भाला लेके चलते थे। इनकी लड़ाई बंदूकों के सामने टिकने वाली थी नहीं। सिराजुद्दौला को पकड़ा गया और सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये बैटल ऑफ पलासी हो गई। ये सवाल आ सकता है, व्हेन द बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट? It was fought in 1757, and who were the participants? The British Army and the army of Sirajuddaulah. So what happened after that? One of the major causes of defeat was the non-participation of the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar in the battle. Mir Jafar had entered into the negotiations with the British. The British had promised to make him the Nawab of Bengal and in return for a large amount of money and trading privileges. क्या हुआ? इसमें से बंदा था जो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था मीर जाफर। ये निकला कमीना गद्दार। ये गद्दार था। इसने क्या किया? अंग्रेजों से सेटलमेंट कर लिया, अंदर में उनको बैकडोर में बात कर लिया कि मैं उस युद्ध में अपनी सेना, मैंने उसके पास जो सेना हुआ करती थी, था तो वो सिराजुद्दौला के अंदर ही, लेकिन सेनापति का अपना महत्व होता। सेना सिर्फ सेनापति की बात मानती है, राजा कोई क्यों मतलब नहीं, मतलब सिर्फ उसको इससे कैप्टन जो बोलेगा वही करेंगे। तो सेनापति की बात, उसने अपने 5-7-10 हजार सैनिकों को उस युद्ध में लड़ने से रोक दिया। यानी कि अपने ही मालिक के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। किसने? मीर जाफर ने। मीर जाफर जैसे लोगों को क्या कहते हैं? गद्दार। इसने क्या किया? और अंग्रेजों ने उसको लालच दे दिया कि जैसे ही हम इसको मारेंगे, सिराजुद्दौला बहुत ही उछल रहा है, इसको मारने के बाद तुमको हम लोग इसका नवाब बना देंगे। Consequences of the Battle of Plassey, क्या हुआ? इसका परिणाम क्या निकला? The East India Company got free trading rights in the province of Bengal. बंगाल में अब खुलेआम व्यापार करो, लॉस करो, प्रॉफिट करो, नो मैटर, क्योंकि उनका अपना कठपुतला बैठा दिया उसने गद्दी पर, और जो परमिशन चाहिए उसको देना ही पड़ेगा। 2 झापड़ लगा के परमिशन ले लेगा, कोई बात नहीं थी। The British got the जमींदारी of 24 परगनास, 24 परगना। 24 परगनास आज आप सुनते भी होंगे, 24 परगना एक जिला पड़ता है, लेकिन 24 परगना मतलब 24 जिले हुआ करते थे उस जमाने में। और इसका ये पूरा परमिशन दे दिया गया, पूरी जमीनें उनको मिल गई काम करने के लिए अंग्रेजों को। ये बिकेम द फैक्टर रूलर्स ऑफ बंगाल। ये लोग द फैक्टर रूलर बन गया। फैक्टर रूलर का मतलब हो गया कि ये लोग आगे चल करके खुद से अपने मर्जी के हिसाब से काम करने में सक्षम है, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो कर सकते थे। इसके बाद the British were able to utilize the resources of Bengal to maintain large army. बंगाल के सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, रुपया, पैसा, आमदनी, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो लोग अपनी आर्मी का खाना पीना, सर्दी वगैरह पैकअप पूरा बियर करते थे। तो हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया, और कल हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर और खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। Meanwhile, I request all the students of class 8, including Divya, Diya, RM, and everybody, those who are participating in online classes, please you have to make Sakshi also, Sakshi, Anu, A, B, C, D, Golu, yes, Golu Baba also, A, B, C, D you have to make, and tomorrow we will take this in the next class, we will take this chapter ahead. Till then, bye bye, thank you, thanks for watching.